So hi guys, in this video I'm going to talk about the differences between MD and DND. It is one of the most requested videos and I totally understand because the time right now is very crucial. A lot of people are confused and the counseling is going on and people are thinking whether to take admission in a DNB institute or repeat again the next year or NEET PG coming in 5 months. Very tired right now. I have just come up from my 36 hours duty. I'm sleep deprived, but still I thought to make this video because the time is very crucial. Okay, so please understand when I was leaving AIMS MD medicine seat from AIMS Nagpur, especially after scoring such a great All India rank 35, when my family was celebrating, I was also confused, self doubts, and I also did not know much about DNB. तो मैंने क्या किया उस टाइम पे सबसे बात करना स्टार्ट की, बहुत लोगों से बात की, जो लोग DNB कर रहे थे, जो लोग MD कर रहे थे, SRs, APs, and some HODs from some different government hospitals. My second MBBS onwards, I used to take part in a lot of primary market research. I was too much interested in research. एंड देयरफॉर उसकी वजह से मेरे काफ़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के जो बड़े कंसल्टेंट होते हैं उनसे काफ़ी इंट्रैक्शंस होते थे, तो उनका व्यू पॉइंट भी मुझे समझ में आता था. तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की थी, जितनी भी मुझे मिली थी, जितनी मैंने बातें की थी, आई एम गोइंग टू पुट ऑल दैट इन दिस वीडियो सो दैट इट हेल्प्स यू मेक अ गुड डिसीजन फॉर यू. आई एम गोइंग टू गिव यू द समरी क्रक्स ऑफ द एंटायर डिस्कशन और वो क्रक्स ऑफ व्हाट ऑल आई नो. If the video is too long, I'll make part 1 of the video, then I'll make part 2 of the video. Please understand that MD is a very old degree. It is, I think, 100 and 150 years old. It originated in the western part of the world when the medical education system was not organized. Therefore, they came up with a 3-year-old program called as MD. And on the other hand, talking about DNB is relatively new. It is 40 to 50-year-old degree. It was introduced by India, National Medical Council, NMC. तो इंडिया के अंदर बोथ डिग्रीज MD भी इज़ गिवन बाय NMC एंड DNB इज़ ऑल्सो गिवन बाय NMC एंड दे आर बोथ इक्विवेलेंट एंड इक्वल एज पर NMC एंड दे बोथ आर डिग्रीज. बट MD इज़ वेरी फेमस बिकॉज इट इज़ वेरी ओल्ड. इट सेव लाइक मैगी. जो नूडल्स हैं, होममेड नूडल्स होती हैं, उनको हम मैगी की बोलते हैं बिकॉज हमें आदत लग गई है, बचपन से हमने वही सुना है, तो वो सिनोनिम बन गया है. ऐसे ही MD जो है ना, वो एक सिनोनिम बन गया है PG के लिए. सो एवरीबडी कॉल्स इट MD. MD is well known, MD seems big, and every non-medico also thinks, oh, this is an MD, is a big doctor. ठीक है. DNB is just 40-50-year-old. It is a diplomate in national board. It is not diploma. It is a proper 3-year-old degree. A lot of people even are unaware about this. MD is given by NMC via state medical council, like in Maharashtra it is MUHS. DNB is given by NMC only, but it is given by NBE, which is a body under NMC, National Board of Examinations. तो दोनों ही डिग्री बेसिकली NMC देता है. MD वाली डिग्री वाया स्टेट आती है और जो NBE डिग्री है वाया सेंट्रल बॉडी है, वो सेंट्रल डिग्री आ जाती है. ठीक है. तो दोनों ही डिग्री है वो गवर्नमेंट डिग्रीज है. दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड. वन इज़ वेरी फेमस, वन अदर इज़ लेस फेमस, बट नाउ इट इज़ वेरी मच पिकिंग अप बिकॉज from last 10-15 years, lot of people are taking it and it is getting really famous. A lot of people are getting to know about it. So the trend, whenever you look at the trend, you should look at next 5-10-15 years, not the previous 5-10-15 years. Okay, now I'll tell you the differences. देखो, MD और DNB में जो differences होते हैं ना, they are less to do with the name of the degree but more to do with the type of college they are offered in. कि 3 साल का ट्रेनिंग होती है, प्रोग्राम होता है. अगर both MD and DNB are offered by a government hospital, if they are offered by a government hospital, both MD and DNB will be exactly same. There will be exactly same training. Everything will be same. Bond होगा, तुम्हें रिजर्वेशन होगा उसके अंदर सीट्स में, ट्रेनिंग एग्जैक्टली सेम होगी, फीस सेम होगी, स्टाइपेंड सेम होगा, सब कुछ सेम होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर. ओके. और अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी MD हो या DNB हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो यहाँ पे भी अगर बिकॉज DNB इज़ अ गवर्नमेंट डिग्री, यहाँ पे जो स्टाइपेंड होगा वो तुम्हें गवर्नमेंट जितना ही होगा. इट विल बी इक्वल. In most of the hospitals, the stipend is equal. For example, in Maharashtra, the stipend for any government hospital is around 90 to 92,000. पहले कम था, अभी ये साल से बढ़ा दिया है. तो DNB भी जब तुम करोगे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो तुम्हारा स्टाइपेंड इतना ही रहेगा, 90 to 92,000 बिफोर टैक्सेस. ओके. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में MD भी होगा, DNB भी होगा, बट कौन से हॉस्पिटल में MD होगा, कौन से में DNB होगा, दिस आई विल टेल यू. सो whenever there is a teaching college attached, MBBS बच्चे हैं, MBBS कॉलेज अटैच्ड है, इस्टेब्लिश्ड है,
तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एन MD सीट. Obviously, there are other criteria as well, but this is the most important criteria. The reason is MD जो होती है ना, it involves teaching. अगर टीचिंग फैकल्टी होनी चाहिए तो वहाँ पे, जैसे मेरा जो UG कॉलेज है वहाँ पे पहले DMB था, क्योंकि वहाँ पे जो MBBS कॉलेज है वो नहीं था. जब MBBS कॉलेज पूरा अच्छे से इस्टेब्लिश हो गया, एक दो बैचेस पास आउट हो गए, तो उन्होंने DNB को MD में कन्वर्ट कर लिया. तो अभी फ़िलहाल क्या था ना, रिसेंटली जो थर्ड ईयर वाला जो बैच था ना MD मेडिसिन का, वो DNB था, सेकेंड ईयर वाला MD था और फर्स्ट ईयर वाला MD था. ठीक है, तो पहले वो हॉस्पिटल DNB था, अभी MBBS का कॉलेज अच्छे से बन गया है, तो वो हॉस्पिटल एक MD हॉस्पिटल हो गया है, मतलब जो डिग्री है उसका नाम MD हो गया है. अभी भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में DNB डिग्री भी है. वन मोर एग्जांपल इज RJMC थाने. इट्स ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट इट हैज़ DNB. ओके, तो वहाँ पे बॉन्ड भी है. तो दिस इज़ द सिमिलैरिटीज़ वेदर यू डू MD एंड DNB. और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से MD करो या DNB करो, आपकी जो ट्रेनिंग है वो एग्जैक्टली आपकी जो ट्रेनिंग है वो कम्प्लीटली सेम रहने वाली है. कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो तुम्हारी डे टू डे लाइफ डिपेंड जो करती है, वो करती है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितने हैं. अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं, तो तुम्हारी हफ्ते में एक दिन इमरजेंसी होगी, हर यूनिट की एक दिन इमरजेंसी होगी. ठीक है, इमरजेंसी मतलब 24 आवर कॉल ड्यूटी होगी तुम्हारी. तो मॉर्निंग से लेके 7-8 बजे से लेके 2 बजे तक OPD करोगे. उसके बाद में तुम इमरजेंसी में जाओगे, तुम पेशेंट देखोगे और जो भी सीरियस पेशेंट होगा उनको एडमिट करोगे. ठीक है, पूरा दिन सुबह 7-8 बजे तक 24 घंटे तुम काम करोगे, विदाउट स्लीपिंग, विदाउट एनीथिंग. यू विल कंटिन्यूसली वर्क. फिर जो नेक्स्ट डे तुम्हारा होगा, जिसको पोस्ट कॉल डे बोलते हैं, जो तुम्हारी इमरजेंसी के बाद आता है, पोस्ट इमरजेंसी डे जो होता है, उस दिन तुम क्या करते हो, जितने भी एडमिशन्स तुमने लिए हैं, जितने भी लोग एडमिट हुए हैं, उन सब का तुम वर्कअप सेट करते हो, उन सबको इन्वेस्टिगेशन करते हो. राउंड्स होते हैं बहुत सारे, सीनियर्स के राउंड्स होते हैं, कंसल्टेंट्स के राउंड होते हैं, देन समटाइम्स HOD के राउंड भी होते हैं, और फिर इवनिंग्स में राउंड होते हैं. सो दैट केसेस क्या है उन्हें समझना, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, डायग्नोसिस बनाने की ट्राई करना. ठीक है, फिर बाकी के पूरे हफ्ते तुम उनको डायग्नोस करने की ट्राई करते हो, ट्रीट करते हो, जो इन्वेस्टिगेशन भेजी थी उनको ट्रेस करते हो. जब तुम्हारा कॉल डे आएगा ना, एग्जाम्पल ट्यूसडे तुम्हारा कॉल डे होता है, तो उससे जस्ट पहले वाला दिन, मंडे, प्री कॉल वाला जो डे होता है, वो तुम्हारा रिलेटिवली चिल होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते तुमने उन पेशेंट्स को देखा है, उनमें काम किया है, इन्वेस्टिगेशंस किए, तो तुम्हारा काम बहुत ईजी हो जाता है. देन फिर कॉल डे आता है, फिर तुम्हारे 24 आवर्स जाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट कॉल पर 24 आवर्स, तो 48 आवर्स तो इजीली चले जाते हैं विदाउट स्लीपिंग, विदाउट हैविंग एनीथिंग. दिस इज़ द कॉल डे. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है ना, हर एक छोटी चीज़ एक रेजिडेंट को करनी पड़ती है, हर एक छोटी चीज़. ब्लड टेस्ट सैंपल तुम्हें करना है, ब्लड निकालना तुम्हें है, कौन से बल्ब में जाने वाला है, तुम्हें भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है. फिर वो रिपोर्ट कब आती है उसकी ट्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, वो सही है गलत है ये देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है. तो तुम्हें आप बहुत माइक्रो लेवल में जितने भी काम होते हैं ना, क्लर्कियल वर्क भी बहुत ज़्यादा तुम्हें करने पड़ते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. मतलब जो सीखने वाले काम होते हैं वो तो तुम करते ही हो, बट साथ साथ जो क्लर्कियल वर्क होते हैं ना, वो 60 से 70% होता है सीखने के साथ साथ, विच आई फील इज़ अननेसेसरी, विच आई फील पुट्स टू मच बर्डन ऑन यू. You should have staff to do all that. Okay, so this is how your training looks like in a government hospital, whether you are doing DNB, whether you are doing MD. So on the other hand, let's talk about the DNB hospitals who are offered by corporate hospitals. तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा स्टाइपेंड सेम होगा, विच इज़ नियरली इक्वल टू द गवर्नमेंट. तुम्हारी फीस सेम होगी, इनफैक्ट कम होगी, 1,25,000 ही होती है. तुम्हें बॉन्ड नहीं होता, तुम्हें रिजर्वेशन नहीं होता, राइट. तो ये सारे बेनिफिट्स हैं. साथ साथ में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होता है, इट डज़ नॉट फंक्शन यूनिट वाइज, इट फंक्शंस कंसल्टेंट वाइज. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट में यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं. क्योंकि जब भी मैंने एग्जांपल दिया ना कि जब भी तुम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, यू आर विद योर फैमिली, तो तुम जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी रिनाउंड फिजिशियन को दिखाने जा रहे हो, और तुम्हें यू आर पेइंग 2,000 3,000, तो दैट फिजिशियन विल एडमिट यू अंडर हीज नेम. तो वहाँ पे यूनिट नहीं होते, वहाँ पे कंसल्टेंट्स होते हैं. ठीक है, और तुम डायरेक्टली कंसल्टेंट के नीचे पोस्टेड होते हो. तो ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं ना, उनके अंदर लाइफ कैसे होती है, आई विल टेल यू. उनके अंदर कितनी हेक्टिक लाइफ होती है. सी देयर आर 2 नाइट ड्यूटीज़ एवरी वीक. ज़्यादातर हॉस्पिटल में 2 से 3 नाइट ड्यूटीज़ होती हैं एवरी वीक. तो आपको तीन बार कॉल आएगा आपका. आप पूरा 24 घंटे हॉस्पिटल में रहोगे 3 बार. तो देखो, अगर 3 बार आपका हफ्ते में कॉल आ रहा है तो इज़ इट लेस हेक्टिक. बट हमने जो लेवल है वो इतना लो सेट कर दिया है ना कि हमें ये कम हेक्टिक लग रहा है. हम बोलते हैं DNB में लाइफ अच्छी है, DNB के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाता है. बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम अगर 3 दिन 24 घंटे हॉस्पिटल में स्पेंड कर रहे हो
और फिर तुम सो भी रहे हो, तुम काम भी कर रहे हो, तो तुम्हें टाइम मिला कहाँ तुम्हारे? तो तुम, इट इज़ इम्पॉसिबल वेदर यू आर डूइंग एमडी, वेदर यू आर डूइंग डीएनबी, टू फॉलो योर हॉबीज़, अपना पैशन फॉलो करना, हॉबीज़ फॉलो करना, कुछ और लाइफ के साथ करना, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, किसी किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में क्या होता है, देर आर 2 नाइट्स एवरी वीक, तो तुम्हें रिलेटिवली बेटर हो जाता है तुम्हारे लिए। जिस दिन तुम्हारी नाइट नहीं होती, उस दिन तुम्हारा जो जॉब होता है वो मॉर्निंग 8 to 8 होता है, कि तुम मॉर्निंग 8 बजे आओगे, शाम को 7-8 बजे तक काम खत्म करोगे एंड योर वर्क इज़ डन। जो अगर तुम कॉल है तो तुम्हारा कॉल मॉर्निंग 8 से अगले दिन 8 तक चलेगा, फिर अगले दिन 8 से कंटिन्यूस रात को 8 तक चलेगा, यूजुअली 36 आवर्स, राइट। तो कोई कोई ऐसे तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ये यूजुअली डीएनबी में होता है। तो आई हैव जस्ट कम एज आई टोल्ड यू फ्रॉम माई 36 आवर्स ड्यूटी। आई वेंट मॉर्निंग 7:30 इश इन द हॉस्पिटल। मैं मॉर्निंग 7:30 तक था, फिर उसका मैं रात तक 7 o'clock तक था, उसके बाद में मैं हॉस्पिटल से निकला मेरी ड्यूटी कंप्लीट करके, ठीक है। तो आई टोल्ड यू अबाउट इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आपकी जो नॉर्मल जो ड्यूटी आवर्स रहते हैं वो रहते हैं मॉर्निंग 8 से 8 तक, और जो तुम्हारे इमरजेंसी ड्यूटीज़ रहती हैं वो रहती हैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार। फॉर एग्जांपल वोखाट हॉस्पिटल है जो मुंबई के अंदर है, वहाँ पे आप तुम्हें हफ्ते में 3 नाइट्स रहती हैं, तो इट इज़ वेरी हेक्टिक। हर एक ऑल्टरनेट डे पे तुम्हारी नाइट होगी। तुम आज का पूरा दिन करोगे, पूरी नाइट करोगे, अगले दिन करोगे शाम तक, उसके बाद में तुम आओगे घर पे, आके सोओगे, सोने के बाद तुम अगले दिन वापस मॉर्निंग में 5-6 घंटे सोओगे, वापस 7 बजे चले जाओगे, फिर वापस तुम नाइट स्पेंड करोगे, पूरा दिन नाइट एंड पूरा अगला दिन स्पेंड करोगे, फिर घर पे आओगे। तो ऑल्टरनेट डे पे तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना है, राइट। तो इट इज़ वेरी हेक्टिक। एंड इन सम हॉस्पिटल्स लाइक सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली, हॉस्पिटल लाइक ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई, इट इज़ रिलेटिवली चिल। वहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे जो ड्यूटी आवर्स रहते हैं वो मॉर्निंग से 7-8 बजे से लेके 4-5 बजे तक ही होते हैं, 5 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 नाइट ड्यूटीज़ रहती हैं, ठीक है। कुछ बहुत छोटे हॉस्पिटल है, तो देखो जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात करोगे ना, तो इट इज़ वेरी वेरिएबल। जैसे मैंने गवर्नमेंट में बोला ना 7 यूनिट होते हैं, किसी में 2 ही यूनिट होते हैं, ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी कंसल्टेंट होते हैं, किसी में 6 कंसल्टेंट हैं, किसी में 2 कंसल्टेंट हैं, किसी में 3 कंसल्टेंट हैं। तो हर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग वैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, बहुत कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तुम्हारी लाइफ एमडी से ज़्यादा हेक्टिक होगी, बहुत जगह पे तुम्हारी लाइफ कम हेक्टिक होगी। आई गिव यू ऑल द एग्जांपल्स, राइट। एंड व्हाट इज़ योर डे टू डे लुक्स लाइक इन द कॉर्पोरेट डीएनबी हॉस्पिटल? अगेन तुम मॉर्निंग में 7:30 आओगे, तुम अपने राउंड्स, तुम्हारे जितने भी पेशेंट एडमिटेड हैं, तुम व्हाट आई डू इज़ यूजुअली तुम उनके राउंड लोगे, उनका अपडेट करोगे, उनकी कंडीशन देखोगे, उनको एग्जामिन करोगे, उसके बाद में तुम डायरेक्टली तुम्हारे कंसल्टेंट को राउंड दोगे। तुम्हारा कंसल्टेंट आएगा डायरेक्टली, तुम उसको राउंड दोगे और तुम बताओगे तुम्हें क्या सही लगा, क्या गलत लगा, तुम्हारी एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स क्या थी, तुमने किस पेशेंट में क्या स्टार्ट किया है, क्या बंद किया है। मोस्टली कंसल्टेंट्स आर वेरी दे आर टू ऑक्यूपाइड, टू स्ट्रेस दैट दे गिव यू फ्री हैंड। ज़्यादातर कंसल्टेंट्स होते हैं कि वो तुम्हें ऑटोनोमस डिसीजन लेने देते हैं कि तुम डिसीजन लो, जस्ट इन्फॉर्म देम, कीप देम इन्फॉर्मिंग। फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट ऑफ फीवर कम्स इन, तुम फीवर का पूरा पैनल भेज दो, वर्कअप पूरा कर लो फीवर का, एंटीबायोटिक जो कॉमन एंटीबायोटिक है जो चालू करनी चाहिए वो चालू कर दो। उसके बाद में कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कर दो, इफ़ ही फील्स कि उसको एक और इन्वेस्टिगेशन ऐड करनी है, ही विल जस्ट टेल यू प्लीज़ ऐड दिस इन्वेस्टिगेशन और प्लीज़ ऐड वन मोर एंटीबायोटिक। सेम एज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जब राउंड्स होते हैं तो तुम्हें जो कंसल्टेंट होते हैं वो तुम्हें बता देते हैं, जो एपीज होते हैं वो तुम्हें बता देते हैं कि ये एक्स्ट्रा करना है, ये ऐड करना है, जो तुमने नहीं सोचा होगा, राइट। दिस इज़ हाउ यू लर्न। तो सेम स्टोरी होती है यहाँ पे भी। तुम पूरे साल फर्स्ट ईयर वार्ड में पोस्टेड होते हो, तुम वार्ड के अंदर तुम वार्ड का काम करते हो, कंसल्टेंट को राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद में जब कंसल्टेंट का राउंड पूरा हो जाता है, जब तुम पोस्ट राउंड्स करते हो अपने कि कंसल्टेंट ने क्या क्या बोला है, किस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करना बाकी है, किस पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं आई है, ये जो भी है तुम्हारा पोस्ट राउंड में जो भी काम रहता है, किसी पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तुम्हें डिस्चार्ज समरी बनानी है, तो ये बेसिकली तुम्हारा डे होता है इन अ डीएनबी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। से मोर और लेस लुक्स लाइक द सेम, देयर आर नो डिफरेंसेस। आई टेल यू व्हाट आर द डिफरेंसेस। द डिफरेंस, नंबर 1 डिफरेंस इज़ दैट यहाँ पे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल तुम्हें क्लर्कियल काम करने पड़ते हैं। जैसे तुम्हें ब्लड कलेक्शन करना नहीं है, तुम्हें अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भेजनी है, यू डायरेक्टली राइट ऑन द ऑर्डर पेज कि मुझे इन्वेस्टिगेशन भेजनी है। इट इज़ द जॉब ऑफ द सिस्टर एंड इट इज़ और नर्स, इट इज़ द जॉब ऑफ द नर्सेस एंड देयर इज़ अ कलेक्शन टीम हु कम्स एंड कलेक्ट्स ब्लड। अगर तुम्हें एमआरआई में भेजना है तो तुम्हें उस पेशेंट को लेके नहीं जाना पड़ेगा। तुम अगर चाहते हो, तुम्हें देखना है, तुम जा सकते हो, बट यू कैन सिंपली राइट एंड देयर इज़ अप्रोप्रिएट स्टाफ। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कलेक्शन करना है, कुछ भी करना है, देयर इज़ अ स्टाफ फॉर डूइंग दैट फॉर यू। तुम्हारा जो क्लर्कियल काम है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें सीखने का चांस ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ व्हाट आई फील आफ्टर स्टार्टिंग वर्किंग इन हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई डीएनबी मेडिसिन।
I chose Hinduja Hospital because the ranking of Hinduja Hospital is rank 2 after Sir Gangaram Hospital from Delhi. But I chose to be in Mumbai as I have shared in my previous videos. So this is your day looks like in the DNB corporate hospital. TNB जो गवर्नमेंट में होगा तो सेम एक्जैक्टली एमडी की तरह होगा. फिर सेकंड ईयर में तुम जाओगे तो सेकंड ईयर में पूरे सेकंड ईयर में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल तुम्हारी पेरिफेरल पोस्टिंग्स लगती हैं. रूमेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी. तो तुम पूरे 1 साल 1.25 साल तक तुम सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हो गए ताकि तुम्हें एक्सपोजर मिले सारे डिपार्टमेंट्स का. उसके बाद में लास्ट ईयर में तुम वापस वार्ड्स में आ जाते हो. फिर तुम्हारे जूनियर्स आ जाते हैं, उनको तुम सिखाते हो, उनके साथ राउंड लेते हो, पेशेंट समझते हो. राइट, दिस इज़ योर स्टोरी इन अ डीएनबी. बट यहाँ पे तुम्हें बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होता, स्टाइपेंड इज सेम एंड योर फीस इज सेम. ओके, नाउ आई टेल यू द डिफरेंसेस. देखो यहाँ पे ना तुम्हें बिकॉज ओपीडी एक्सपोजर नहीं मिलता या कम मिलता है काफ़ी. प्लीज़ अंडरस्टैंड रीजन्स वाई. बिकॉज अगर तुम एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हो एक बड़े कंसल्टेंट को दिखाने हैं, या फॉर इफ़ यू आर पेइंग 2,000-3,000 रुपीज़ फीस, then you don't want a trainee doctor to see you, right, and prescribe you drugs. But on the other hand, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो गरीब लोग आते हैं जो आर सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स, पुअर पीपल, दे डोंट हैव मच मनी. तो उनकी नोबडी केयर्स अबाउट देम. उनको JR1 देख लेता, कोई भी देख लेता है. एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो माइंडसेट होता है ना, वो बिकॉज इतनी ओपीडी भरी रहती है, इसमें JR की गलती नहीं है, डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, बट तो माइंडसेट होता है वो खाली करने का होता है ओपीडी. यू प्ले विथ PCM, PAN 40, डाइक्लोफेनेक, बिस्कोपैन, उन सब के साथ तुम खेलते हो और ओपीडी खाली करते हो. तो यहाँ पे तुम्हें ओपीडी का एक्सपोजर नहीं मिलता. इसके वर्कअराउंड्स क्या हैं कि तुम अपने कंसल्टेंट के साथ बात कर सकते हो. इफ़ ही इज़ कॉन्फिडेंट इन यू कैन ओपीडी में उनके केसेस देखने से पहले तुम हिस्ट्री ले लो एंड देन यू प्रेजेंट दोज केसेस. और व्हाट यू कैन डू इज सम हॉस्पिटल्स हैव लाइक ट्रस्ट डेज, 1 or 2 days, जहाँ पे सस्ते काफ़ी कम पैसों में ओपीडी होती है. वहाँ पे तुम ओपीडी में बैठ सकते हो, वहाँ पे तुम्हें अराउंड होगा. राइट, और या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने कंसल्टेंट के साथ बैठ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो. तो दीज आर द वर्क अराउंड्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो ओपीडी होती है, आई टोल्ड यू ना, देयर इज़ नो क्रिटिकल थिंकिंग, देयर इज़ नो थरो इवैल्यूएशन, देयर इज़ जस्ट खाली करने का एम होता है. तो आई डोंट थिंक इट हेल्प्स मच, बट 100% इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. But on the other hand, if you're doing a DNB from a good institute, then you will 100% be at par at the confidence level. This is what is my understanding after talking to a lot of people and even after working in a DNB institute. Your confidence depends on how much you are interested in the subject. I've seen a lot of MDs who after clearing MD they are less confident and are unable to start their own practice and wants to do further SRship and all. And there are a lot of DNBs who are less confident. But on the other hand, there are a lot of MDs who are super confident. There are a lot of DNBs who are super confident. So it depends on the individual कि तुम्हारी personality क्या है, तुम्हारा knowledge कितना है, तुम how do you portray yourself, how smart you are in understanding patient conditions, right? So ये difference होता है so I told you, right? Also अगर आप तुम MD भी कर रहे हो एक प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, तो MD की उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, प्लस तुम्हें इतना ज़्यादा ना OPD एक्सपोजर मिलता है. हालांकि इट इज़ MD, डिग्री इज़ MD, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग OPD एक्सपोजर. द रीज़न इज सेम, बिकॉज पीपल आर पेइंग देयर ओन हार्ड अर्न मनी टू सी अ 70-60 year consultant with 40 years of experience. They won't allow a trainee doctor. सिमिलरली प्रोसीजर्स थोड़े कम होंगे. तो जैसे DY पाटिल है, वहाँ पे भी यू डोंट गेट टू लर्न मच. तो उनकी हालत तो और भी ख़राब है. उससे बेटर आई वुड सजेस्ट MD एक प्राइवेट से करने से अच्छा है, इतनी सारी फीस देने से अच्छा यू डू DNB फ्रॉम अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल. मैन, यू डोंट हैव बॉन्ड, यू हैव नथिंग एंड यू लर्न अ लॉट. ऑल्सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे प्रोसीजर्स तुम्हें कम मिलते हैं. जैसे मेडिसिन की अगर बात की जाए तो मेडिसिन में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं. यू विल बी हैविंग इंट्यूबेशन, यू विल बी हैविंग सेंट्रल लाइन इंसर्शन, लंबार पंक्चर, साइटिक टैप, ड्यूरल टैप. तो ये जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कम मिलते हैं, बट तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर भर के मिलेंगे. द रीज़न इज सेम. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, दे आर पुअर एंड दोज पेशेंट आर फॉर ट्रायल एंड एरर. एवरीबडी ट्राइज whoever wants to try. But in a corporate hospital, patients are paying money and therefore the trials are less. तो तुम्हें बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद तुम्हें मिलता है. ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, तुम्हें मिलता है. बट यहाँ पे तुम इतना ट्रायल करने के बाद में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है. बट यहाँ पे भी अगर तुम सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीख सकते हो. और हमारा बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है ना कि प्रोसीजर्स बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेडिसिन में. ऐसा नहीं है यार. प्रोसीजर्स आर जस्ट 5% ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन इज़ अ वास्ट ब्रांच. इट इज़
critical thinking, evaluating patient, differential diagnosis, understanding symptoms, understanding diseases, understanding drugs, treating patients. These are the main things. These procedures you won't be, if you will be practicing in a metro city like Mumbai, in a corporate hospital, you won't be doing these procedures, right? There will be team, anesthesia की टीम होगी, सर्जिकल टीम होगी, सारी टीम्स होंगी ये सब करने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं करना है. बट ऑन द अदर एंड, हाँ, अगर तुम एक पेरीफेरी में जाने वाले हो, अपने विलेज में जाने वाले हो, होम टाउन में जाने वाले हो, और वहाँ पे अपना खुद का हॉस्पिटल बनाने वाले हो, तो वहाँ पे तुम्हें सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए. तो द वर्क अराउंड इज़ कि तुम अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हो तो वहाँ पे ट्राई करो करने का जितना. अगर तुम वहाँ पे लेस कॉन्फिडेंट होते हो तो तुम एक साल गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हो. गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद यू कैन डू ट्रायल एंड एरर जितना करना है, और तुम 3 महीने में यार कॉन्फिडेंट हो जाओगे. कोई भी इंसान कहीं भी जाता है गवर्नमेंट में, 1-2 महीने में कॉन्फिडेंस हो जाता है. पेशेंट को कर भी ईजी हो जाता है. और ऑल्सो यार PG करने के बाद में ना मेजॉरिटी ऑफ दी MDs और DNBs जितने भी लोग हैं इस डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करते हैं. सम गो टू सुपर स्पेशलिटी, सम डू SRship. बिकॉज PG में हमारे पर इतना प्रेशर होता है ना, MD हो DNB हो, हमें सीखना होता है, हमें मतलब इतना काम करना पड़ता है, हमें इतना सीखना पड़ता है, लर्न करना है, काम करना है, थीसिस का प्रेशर है, एग्ज़ाम का प्रेशर है. PG जस्ट मेक्स योर बेस. उसके बाद में तुम SRship में या SS के अंदर अपनी नॉलेज को रिफाइन करते हो. PG में तो सिर्फ बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है. तो इतना स्ट्रेस मत लो PG के बारे में कि तुम्हें सारे प्रोसीजर आ जाना चाहिए, सब कुछ आ जाना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. when you will reach 3rd year में, जब PG का 3rd year आएगा ना, तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि what I'm seeing right now. तुम रियलाइज़ करोगे कितना मुझे सीखना बाकी है यार. देर आर कंसल्टेंट्स 50 years old who are still learning, trying to understand. तो इतना स्ट्रेस मत लो कि PG के 3rd साल के अंदर तुम बस पता नहीं क्या बन जाने वाले हो. ऐसा नहीं है. PG में तुम्हारा बेस बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जानी चाहिए. तो वो तुम्हारा जो फाउंडेशन बनेगा ना, उसके ऊपर तुम्हारी नॉलेज ग्रो होगी तुम्हारे एक्सपीरियंस के साथ. तुम SRship करके तुम्हारी नॉलेज रिफाइन करोगे. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वन एडवांटेज ऑफ अ कॉर्पोरेट DNB हॉस्पिटल. द एडवांटेज इज़ कि यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नहीं ये ड्रग अवेलेबल नहीं है, ये ड्रग नहीं दिया जा रहा है, या फिर रेयरली चीज़ें हैं, या फिर ये नहीं है वो नहीं है. यहाँ पे प्रोटोकॉल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने अच्छे से डिज़ाइन होते हैं. एक्चुअल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज़ प्रैक्टिस्ड. अब बहुत क्लियर कट प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्लियर कट गाइडलाइंस होते हैं. क्योंकि यहाँ पे तुम पेशेंट के साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते कि तुम्हें ये नहीं जम रहा तो ऐसे कर दो. यू हैव टू गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द पेशेंट. पेशेंट्स आर एजुकेटेड. यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स. वेन एवर आई गो टू पेशेंट्स कैबिन में जब नॉक करके जाता हूँ अंदर, देन आई ग्रीट देम कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ डॉक्टर माज एंड आई एम फ्रॉम दिस टीम एंड आई एम फ्रॉम मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड आई एम हियर टू टेक योर फिटनेस फॉर द सर्जरी टुडे. सो दिस कम्युनिकेशन जो होती है ना, इतनी स्मूथ कम्युनिकेशन होती है, इतने तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम जाके खड़े हो जाते हो और तुम बहुत रूड होते हो, बिकॉज तुम्हें इतना प्रेशर होता है काम का कि तुम इरिटेटेड होते हो. तुम्हारी गलती नहीं होती, तुम्हें नींद नहीं मिली होती. यहाँ पे तुम कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से सीखते हो. यहाँ पे तुम एम्पैथी बहुत अच्छे से सीखते हो. अगर किसी पेशेंट के अंदर डाउट आ रहा है, पेशेंट हियर आर सो एजुकेटेड, दे आस्क यू लिटिल बिट डाउट. दे आस्क यू विच एंटीबायोटिक्स आर यू आर पुटिंग माई पेशेंट ऑन. Sir, how about the cultures? Which organism is isolated? They ask you such questions. They have been asking me, which organism did you isolate? Which antibiotic is susceptible to? तो जब तुम उनको आंसर करते हो ना, तो तुम्हारी नॉलेज रिफाइन होती है, तुम्हें कम्युनिकेट करना आता है. तो तुम देखते होगे ना कुछ वीडियोज़ में, UK US वीडियोज़ में, हाउ दे ग्रीट पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, राइट. तो विच आई ऑल्सो डू टू ऑल द पेशेंट. जो मुझे आदत नहीं थी, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. कूपर माई UG कॉलेज वॉज गवर्नमेंट, एम्स वॉज गवर्नमेंट. तो मुझे गवर्नमेंट वाली आदत थी. तो इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक चेंज फॉर मी, बट आई रियली लाइक दिस चेंज. कि कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, एम्पैथी हो रही है. यू विल लर्न वेरी वेल इन अ कॉर्पोरेट. अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अच्छा है, बड़ा है, it is well known, then you will learn lot of good protocols and you will learn how to handle patients in a corporate setup, right, where patients are capable to sue you. तो यहाँ पे तुम्हें क्लर्कियल काम नहीं करने पड़ते. यहाँ पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस होता है. यहाँ पे OPD एक्सपोजर कम होता है. यहाँ पे प्रोसीजर्स तुम्हें कम मिलते हैं. ठीक है. कॉन्फिडेंस लेवल आजकल MD 99% हुआ कमिंग आउट. दे आर डूइंग SRship बिकॉज दे आर लेस कॉन्फिडेंट. इवन DNBs आर डूइंग SRship. तो तुम SRship कर सकते हो. ठीक है. और तुम एक बार पास आउट कर लेते हो ना यार, तो ये जो MD DNB फेलोशिप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है. बिकॉज जो आम लोग होते हैं ना, even the educated ones, I see in Hinduja hospital lot of educated people. I see my cousins and everybody who are not doctors, they don't understand these. तुम्हें भी पता था कि जब तुम 12th में थे, तुम्हें नहीं पता था कि MD क्या होता है, DNB क्या होता है. They don't look at this. They see you as cardiologist, nephrologist, obs gynae,
right? There are people who have done DNB in obs and gynae and they are having a thriving gynae practice. There are people who did just diploma in obs and gynae and they are having good practice. There are people who have done after MBBS fellowship in endocrinology and they are having a very good specialist practicing and people are calling them big specialist doctors. तो इट्स नेवर अबाउट द डिग्री. एक कंसल्टेशन पेपर देखोगे उसमें कितने नाम की डिग्री लिखी होती है, MBBS, MD, DNB एंड देन DM, DR, DNB एंड देन द फेलोशिप दैट दे हैव डन. उसके नीचे फिर किस एरिया में दे आर इंटरेस्टेड इन. एग्जाम्पल एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वुड राइट डायबिटीज स्पेशलिस्ट, थायराइड स्पेशलिस्ट. तो इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है. वी गेट कन्फ्यूज. हाउ अबाउट नॉन मेडिकल्स? वो तो कन्फ्यूज होना ही है ना, उनको तो कन्फ्यूजन होगा ही ना. तो इट इज़ नेवर अबाउट द डिग्रीज. इफ़ यू आर गुड, तुम अगर तुम नॉलेजेबल हो, स्किल्स तुम्हारी अच्छी, तुमने अच्छे से सीखा है, तो पेशेंट विल कम टू यू लाइक मैग्नेट्स. ओके, आई होप इट हेल्प्स.